28 जुलाई 2024 एक सबक है हमारे पूरे के पूरे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, कि उनकी छोटी सी नेग्लिजेंस एक इतना गलत परिणाम लेकर आ सकती है. The day started with a very, very disappointing and heart-wrenching news where young aspirants lost their lives because the government was incapable of handling issues that come within their ambit. Yes, I am talking about the lives of the young aspirants that was in a very heart-wrenching manner lost because of waterlogging. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाटरलॉगिंग होती क्या है, दिल्ली में ही सिर्फ इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. Welcome everyone to Maluka IAS. Now before I start off with this extremely important discussion with you, I would like to introduce a very, very important initiative by Maluka IAS for all the UPSC aspirants out there. I know आप बार बार एक ही चीज की तरफ देखते हैं कि कहीं से हमें कोई ऐसी एडवाइस मिल जाए किसी यूपीएससी टॉपर से जिसको इम्बाइब करके हम इस बहुत ही कठिन एग्जामिनेशन को आराम से क्लियर कर सके. So Maluka IAS has understood that problem and we have brought in front of you a free of cost lecture. Not just one. These lectures will be done on 3 days, 2nd, 3rd and the 4th of August 2024 through the Maluka IAS application, wherein you will be able to discuss your doubts. All of your clarifications will be done by AIR 58 Vaibhav Anand Sharma, and not only that, वो आपको ethics भी पढ़ाएंगे, ऐसे writing की भी बहुत सारी आपको hints and tricks and tips दी जाएंगी. So do not waste any time. This is a once in a lifetime opportunity. Kindly download Maluka IAS application today and register for this class free of cost. अब जिस दुखद घटना के बारे में मैं बात कर रही हूं वो घर घर में आज की डेट पे एक डिस्कशन बना है कि ऐसे क्यों होता है कि थोड़ी सी बारिश होती है और बाढ़ की तरह वो हर जगह वाटर लॉगिंग होने लग जाती है. क्या दिल्ली की सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं किया? और अगर नहीं किया तो कब करेंगे? When will we realize that the government has to take a step? And why are they not taking this step? Why are they taking it so lightly? The lives of young aspirants has been lost. And mind you, ये waterlogging की जो कहानी है, ये केवल राजेंद्र नगर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये पूरी दिल्ली की कहानी है, जहां पे थोड़ी सी बारिश होती है और 10-10, 12-12 फीट तक पानी भर जाता है. सो मच सो कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं. अभी कल परसों एक और न्यूज आई थी जहां पे एक और बच्चा एक गेट को पकड़ के इलेक्ट्रोक्यूट हो गया बिकॉज नेकेड वायर्स वहां पे लगी हुई थी. When will we realize, when will the government realize that they have to take very, very strong steps? So today guys we will talk about ऐसा क्या है दिल्ली में जिस वजह से ज्यादा भी बारिश नहीं होती. आजकल नॉर्मल बारिश में भी लगता है बाढ़ आ गई. क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुराना है? क्या ये कहानी सिर्फ और सिर्फ सिवर में फंसी हुई मिट्टी की वजह से है जिसके कारण पानी नहीं फ्लो हो पा रहा है? चलिए आइए, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक and let's try to bring forth the best possible solution for our capital city. So what is in news is a Delhi coaching center, the basement was flooded because of rain and a lot of aspirants were in that particular basement. They were studying and because of this problem of waterlogging जो कि हमारी सरकार की negligence है, इसकी वजह से इतने बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड और बच्चों की मृत्यु हुई है. बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है. इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हम क्या क्या बात करेंगे? पहली बात तो व्हाट इज इन न्यूज. क्या ऐसे इंस्टेंसेस दिल्ली में पहले भी हुए हैं और अगर हुए हैं तो कब और कहां?
What are the reasons for waterlogging? How do we consider somebody responsible? Who is actually responsible behind this very, very heart-wrenching incident? And then what are the already steps taken and what more steps can be taken by the government so that ऐसे टाइप की घटनाएं दोबारा से हमारे देश में कभी भी ना हो? So the incident in hand is that I've already told you, बहुत सारे बच्चे एक दिल्ली के काफी नामदायक कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे. देखते ही देखते, थोड़ी सी बारिश की वजह से ही देखते तकरीबन 10-12 फीट तक पानी का लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि पानी कहीं और बह के जा ही नहीं पा रहा था. इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए आइए समझिए. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड that the government needs to take a step today, and not just a high level committee and not just one basic policy. The implementation of that policy is very, very important, because this has not happened for the first time. It happened last year also. और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश आ गई, पर बहुत ज्यादा पानी वाटर लॉगिंग की सिस्टम आ गई. वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, क्या कर सकते हैं हम इस चीज के लिए? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टुगेदर. सो अदर सिमिलर इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल द अदर डे आपने भी देखा होगा, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लोकेलिटी है दिल्ली में ही, जहां पे एक इंसान ने बहुत सारी फोटोज खींच के बोला, देखो किस तरीके का वाटर लॉगिंग सिस्टम है दिल्ली का, मेरी मर्सिडीज भी खराब हो गई, मेरी BMW भी खराब हो गई. इसके अलावा अगर हम बात करें, किसी की छत टूट रही है, कहीं पे वाटर लॉगिंग की वजह से और ज्यादा केओस हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, प्रॉपर्टी खराब हो रही है, जाने जा रही हैं. दिस इज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड द मोस्ट पर्टिनेंट, इफ आई हैव टू से दैट. यू कैन टेल मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन द सेम. सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कई साल पुराना है. 1976 में लास्ट उसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई थी. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है. उधर इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है कि वो केवल 55 mm का रेनफॉल सहार सकता है. 55 mm, ये तो आम सी बात हो गई यार. ये आपको और मुझे दोनों को पता है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने यही सेम चीज देखी थी. तो क्यों है ऐसा कि 1976 के बाद ये ड्रेनेज सिस्टम में कोई भी सुधार नहीं आया? क्या ये चीज सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो क्या सरकार ने ऐसा काम किया है जिस वजह से हम बोल सकें कि यस, नेक्स्ट टाइम ये मेरे घर के सामने नहीं होगा, ये मेरी दिल्ली में नहीं होगा, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पर्सनल लाइफ को इंपैक्ट नहीं करेगा? वी हैव टू सिट and think about the kind of negligence that the government has done and the impact that it has had on common public like you and me. हम नहीं जानते थे उनको जिनकी जानें गई, लेकिन आप और मैं भी उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये इस कदर हम लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है. So the steps have to be taken now and very, very soon. So सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें वाटर लॉगिंग का क्या रीजन हो सकता है? हैवी रेनफॉल, ऑफ कोर्स. ना हैवी रेनफॉल इज अ वेरी, वेरी कॉमन फैक्टर, क्योंकि जब से क्लाइमेट चेंज के बारे में सुन रहे हैं, हीट वेव के बारे में सुन रहे हैं, तो हर जगह हम यही पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एट अ वेरी, वेरी रैपिड पेस, राइट? उससे भी सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. बारिशों की अगर हम बात करें, एक बार शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है. द सेकेंड थिंग, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम. दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है और समय आ चुका है कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोरों शोरों से काम करें. ना ही केवल किसी और चीज के ऊपर फोकस करो. हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सरकार का ये काम है. ये हम और आप नहीं बोल रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसी साल कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आम इंसान की रोज की कोई प्रॉब्लम आए, if there is an adverse impact of climate change, then it is the responsibility of the government and it is our fundamental right under Article 14 and 21 of the Constitution. Blocked drains.
पानी कहां से जाएगा? ड्रेन से जाएगा। अच्छा, वो ड्रेन में सिल्ट जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी उसमें से जा ही नहीं पा रहा है। वो मिट्टी, वो सिल्ट भी नहीं साफ हुई, और अगर हो भी जाती तो क्या ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम आप सोच के तो देखिए, 1976 में पहले लास्ट उसको ठीक किया गया है। हम बैठे कहां पे हैं? 2024 में। कितनी सारी चीजें बदल गई, कितनी ज्यादा रैपिड पेस ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, कितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, जिस वजह से ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये आपको और मुझे भी दिख रहा है, ये सरकार को भी दिख रहा है। एंड इट इज टाइम दैट द गवर्नमेंट पुल्स अप इट्स सॉक्स and starts working towards this, because quite frankly this is the worst thing that can happen to a country where the demographic dividend is the maximum. सबसे बड़ा एसेट इस देश का है, इस देश का यूथ। उनकी पढ़ाई, उनकी जॉब से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ, और जो कि इंपैक्ट हो रही है इस चीज की वजह से। तो मैं आशा करती हूं कि सरकार इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करके सबसे ज्यादा पेस पे इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करे, और केवल सिम्टम्स के ऊपर ना देखें, कॉजेस के ऊपर देखें। द कॉज ऑफ दिस इज द वाटरलॉगिंग प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, एंड दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ विच गवर्नमेंट? वेल, इसमें भी बेटा राजनीति तो आ ही जाती है, जहां पे रूलिंग पार्टी बोलती है भाई ये तो किसी और सरकार की देन है, जो ऑपोजिशन है वो कहती है वो तो रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर रही है। हमें नहीं सुनना किसकी गलती है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए, ताकि हमारा प्रेशियस एसेट इस तरीके से वेस्ट ना हो, खत्म ना हो। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम और द रीजन ऑफ वाटर लॉगिंग। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से हमें और ज्यादा घर बनाने पड़ रहे हैं, हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। लैंड एनक्रोचमेंट की वजह से भी ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, राइट? पुअर अर्बन प्लानिंग इज द एक्चुअल ऑपरेटिव वर्ड। कि आपको पता ही है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है, हमारा कैपिटल है, इट इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लोग वहां पे पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, रोज की रोज वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आप कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सिटीज में दीजिए, ताकि एक ही सिटी के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन ना आ जाए। लेकिन ये भी समझिए कि दिल्ली सबका है, और सारे लोग, चाहे वो केरला से आते हैं, यूपी से आते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हर जगह से लोग वहां पे जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो सरकार है वो इसको नजर में रखते हुए बिल्कुल बड़ी प्रायोरिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया है इज क्लाइमेट चेंज। वी डू अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स इन 1976 शायद 55 mm का रेनफॉल बहुत ज्यादा माना जाता होगा, लेकिन आज की डेट पे 55 mm आम सी बात है। अगर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 55 mm के लिए बना है तो उसको चेंज कीजिए, उसके ड्रेनेज सिस्टम को। अभी इट इज लॉन्ग टाइम ओवरड्यू, दिस नीड्स टू चेंज। नहीं तो ऐसी दुखद घटनाएं अगर हमारे देश में होने लग गई तो इससे और किसी का नुकसान नहीं है, केवल हमारे देश का नुकसान है। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, इवन पुअर मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये काफी खौफनाक बात है कि ये आम सी चीज हो गई है हमारे लिए। अच्छा, बारिश हो रही है, अच्छा ये तो होना ही है। ऐसा क्यों है? और ये भी नहीं है कि कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है, ये मेजॉरिटी एरियाज में हो रहा है, केवल दिल्ली में नहीं। हमने तो पहले महाराष्ट्र की भी बात सुनी है, पंजाब में पिछले साल ये चीज हुई है, जिसके कारण फार्मर्स इतने ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं हमारे देश के। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट्स आफ्टर इंसिडेंट्स है। हमें ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रखना खत्म करना पड़ेगा। हर एक चीज को जोड़ जोड़ के हमें पूरी की पूरी पिक्चर जब समझ में आएगी, then we will realize that this is one of the biggest problems of our country and it needs to be taken care of right now without wasting any other time, right?
कंस्ट्रक्शन वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि वो ब्लॉक ही कर देता है ड्रेनेज सिस्टम को। अब मैं ये नहीं कह रही कि कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कंस्ट्रक्शन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन किस तरीके से करो और कहां पे करो और किस टाइम पे करो, ये तो सोच के करना चाहिए ना, ताकि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? The only one who is responsible, and this is not me saying it, and you can tell me, you can state your own opinions. The only one who is responsible, even as per the guardian of the constitution, which is the Supreme Court, is the government. कौन सी गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं के अंदर आता है ये ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग और रेगुलेशन। मैं ये नहीं कह रही कि मेयर वहां पे नहीं गई, या फिर जितने भी लोग हैं पीडब्ल्यूडी की जो हेड है उन्होंने कुछ नहीं बोला, या फिर चीफ सेक्रेटरी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, बट वेल यू आर डूइंग इट, यू आर बीइंग रिएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर। इट इज हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड एज अ कंट्री। अब पिछले साल इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने के बाद हमें लगा था कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई ड्रेनेज प्लान बना होगा 2023 में या 2024 में। क्या हम हमेशा किसी एक बहुत ही दुखद घटना के बाद ही चेंजेस लेकर आ सकते हैं? हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं बन सकते एज अ गवर्नमेंट? हमारी प्रायोरिटीज कहां है? ये सबसे ज्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, राइट? डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, हमारा पीडब्ल्यूडी के अंडर आ रहा है। प्रॉपर्टी ओनर्स एंड रेजिडेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो जो मैंने आपको अभी बताया था, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा कि वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे 3-4 दिन पहले, आई थिंक पटेल नगर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज पीजी एंड इट वाज रेनिंग, फिर से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, इतना ज्यादा पानी भर गया कि भाई उसने गेट को टच कर दिया। अभी गेट को जब टच किया तो एक नेकेड वायर उसके साथ लगी हुई थी, वो इलेक्ट्रोक्यूट होके मर गए। वो नेकेड वायर बताऊं क्यों थी? क्योंकि एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ था जिसके अंदर से वो जो रेजिडेंट्स हैं वो पानी निकाल रहे हैं इलीगली। अब ये वाली चीजें भी प्रॉपर्टी ओनर्स को भी देखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से, और इसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स प्राइवेट ड्रेनेज मेंटेनेंस, लैंड ऑल्टरेशन, हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर ये लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो सरकार शुड टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स and they should make an example to the society that if you do this, these are the repercussions, and the repercussion cannot just be a high level committee, it has to be more than that. अच्छा, अगर हम बात करें सरकार के, कि सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, पर वो इनिशिएटिव्स की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। लॉज तो हमारे, अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हैं। वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाटर सप्लाई और ड्रेनेज नीड्स के लिए ही बनाया गया है, जहां पे सारे के सारे सरकारी स्टेक होल्डर साथ में मिलके ये काम करते हैं। करना तो चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों हम रुके हुए हैं एज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि एक दिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो जाके सोल्यूशन लेकर आएंगे? You have to take the steps today. The second thing, of course, we have our Indian Meteorological Department, जो कि येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ये सब करके अर्ली वार्निंग हमें दे देती है, जबकि बताती है कि भाई बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। सो आप उस तरीके से अपना दिन प्लान कीजिए। These early warnings are also very nice, but not enough. Yes? So हम ये भी नहीं कहेंगे कि सरकार कुछ भी नहीं करे, लेकिन this is not enough because we have seen the repercussions and such a sad repercussion, इतनी दुखद घटना जिसको पूरे के पूरे देश को इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। हम घर पे बैठ के और किसी चीज की बात ही नहीं कर पा रहे except for this. And so it's high time that the steps are taken and they are also consistently implemented and properly implemented.
केवल स्टेप नहीं लेना, इफेक्टिव स्टेप लेना है ताकि रिजल्ट्स हमें दिख सके. Apart from that, there are plenty of laws, National Water Policy, the Water Prevention and Control of Pollution, Environment Protection Act. Laws की कमी नहीं है और schemes की कमी नहीं है. Implementation is the problem. Root cause में जाके, जैसे कि PWT की हेड ने चीफ सेक्रेटरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जिसको भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उसके ऊपर सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट साथ ही साथ ये भी करना चाहिए कि ये चीज दोबारा से ना हो. क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो हम बोलते मे बी एवरीथिंग वाज डन एंड इट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट. Sadly, this is not an isolated incident. These are incidents after incidents, right? Executive action की बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये सारे के सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए गए हैं. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो वाटर लॉगिंग कंडीशंस को ठीक करने के लिए ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करिए और अभी के अभी करिए. टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ग्लोब, टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम एरियाज जहां पे इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद ये वाटर लॉगिंग का इशू नहीं आता. सी इट, कॉपी इट, implement it as far as possible and as soon as possible, right? So upgrade और expand करना है हमने अपने ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेगुलरली उसको मेंटेन करना है, right? अगर इसके बारे में हम बात करें, एक और प्रॉब्लम थी अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम, तो इंप्रूव कीजिए अर्बन प्लानिंग. इस तरीके से अर्बन प्लानिंग कीजिए, ये दिमाग में रख के कि जनता ज्यादा है इंडिया में और उसमें भी डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो वो आएंगे ही आएंगे ऐसी सिटीज में जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, पढ़ाई की भी और काम की भी. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है. एक तो मुझे मेरे शहर में सारे के सारे आप फैसिलिटीज दो, और दूसरा ये आजादी दो कि मैं दूसरे शहर में जा सकूं बिना डरे हुए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए. सो विच इज वाई इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे फ्लड रेजिलिएंट डिजाइन होना चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और लैंड यूज रेगुलेशंस जो बनाई गई हैं उनमें अगर बदलाव लेकर आना है तो वो लेकर आइए, और अगर नहीं लेकर आना, इनफ लॉज हैं तो उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंक्रीज द ग्रीन स्पेसेस, डेवलप पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स, ताकि रेन वाटर की अब्जॉर्प्शन हो सके. डोंट कॉन्क्रीटाइज एवरीथिंग. कॉन्क्रीट जंगल मत बना दो हर एक सिटी को, वहां पे ग्रीन पार्क्स भी डेवलप करो, ग्रीन बेल्ट्स भी बनाओ. Urban forestry is another important thing for the absorption of the rain water. So this is what we have in mind. And finally, rainwater harvesting. Rainwater harvesting एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ना ही इस पानी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बाद में जाके पानी का भी इशू नहीं होगा और इसकी स्टोरेज की भी कैपेसिटी बनेगी. So this is also a very, very important point that the government has to keep in mind, make it mandatory to do rainwater harvesting and storm water management. So conclusion ये है कि climate change is an obvious fact, हो रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें तो डिस्कशन की भी बात नहीं है. अब क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो उसके कारण जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करो. हर साल असम में बाढ़ आ रही है, केरला में बाढ़ आ रही है, अब दिल्ली में थोड़ी सी बारिश की वजह से इतनी वाटर लॉगिंग हो रही है, हमें दिख रहा है ये आगे पीछे हर जगह. सो वी नीड टू टेक दीज स्टेप्स एंड वी नीड टू टेक देम टुडे. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट दिस एंटायर इंसिडेंट. नाउ बिफोर वी एंड दिस, मैं आपको एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन देने वाली हूं जिसका आंसर आपने लिखना है, एंड यू आर गोइंग टू गो टू योर मेंटर्स, ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेयरएवर यू आर स्टडीइंग. अपने मेंटर्स के पास जाइए, ये आंसर लिख के और देखिए कि आप इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं. सो सवाल ये है, व्हाई इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग स्टिल ब्रिंगिंग हैवॉक टू मेजर सिटीज इन इंडिया, राइट? So you can give examples of Mumbai, which we had discussed in a previous video lecture, and of course Delhi
and let's see what you come up with. Now, before I end this particular video lecture, I would like to make two very, very important announcements for the UPSC aspirants. जो बच्चे 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट सीरीज मिल जाए जो कि यूपीएससी पैटर्न के साथ अलाइंड है, तो लुक नो फर्दर एंड जॉइन मलूका IAS's टेस्ट सीरीज टुडे, वेरिन ये दोनों माध्यम में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इंग्लिश भी हिंदी भी, साथ ही साथ डिस्कशन भी मिलेगी टॉप मेंटर्स से एट वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट्स. सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. Call us on our official number today or join any of our offline centers and make your dream a reality. And before I end it, the second announcement is the monthly to the point current affairs for all the UPSC aspirants, primarily for those जो 2025 में अपना एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं. ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है at very very affordable cost. And with that, I end this particular video. Thank you very much. I will see you again soon.